Standard 8 English. Dear children, in this video, we are going to do a poem of our English textbook, Vocation. It is in the second unit of our textbook, the first lesson of the second unit. Vocation is a poem written by Ravindranath Tagore. रविंद्रनाथ टैगोर को तो हम सब जानते हैं. रविंद्रनाथ टैगोर is the author of our national anthem जनगण मन. जनगण मन जो एंथम है हमारा, वो किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर. चलो पोएम स्टार्ट करते हैं. When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane, every day I meet the hawker crying, bangles, crystal bangles. When the gong sounds 10 in the morning, gong actually एक फ्लैट मेटल होता है, फ्लैट मेटल बेल रंग टू ड्रॉ पीपल्स अटेंशन. लोगों का ध्यान खींचने के लिए एक फ्लैट मेटल बेल होता है जिसपे टंग करके आवाज बजता है. हियर विच गॉन्ग इज मेकिंग साउंड? मे बी इट इज द अलार्म क्लॉक, या फिर स्कूल पास में हो तो स्कूल का वहाँ से जो स्कूल का जो बेल बजने का साउंड. ओके, वॉट एवर, सम काइंड ऑफ साउंड, बेल बजने का आवाज, दैट इज गॉन्ग साउंड्स. जब गॉन्ग आवाज करते हैं 10 इन द मॉर्निंग, दैट मीन्स ऑलमोस्ट इट इज द बेल ऑफ द क्लॉक. ओके, टाइम पीस 10 बजने पर इन द मॉर्निंग. एंड आई वॉक टू स्कूल बाय आर लेन, और मैं सीधे मेरे स्कूल के लिए चल के जाता हूँ बाय आर लेन. लेन मीन्स बाय आर स्ट्रीट, हमारे रास्ते से जाते हैं. तो एवरी डे आई मीट अ हॉकर. हॉकर मीन्स वो ट्रेडर या वो सेलर जो सामान लेकर घर घर जाकर घूम के बेचते हैं. A person, hawker means a person who travels along to sell the things by shouting the name of the things और and the cost of the things. चीज़ें और उसका कॉस्ट चिल्ला चिल्ला कर रास्ते में चल चल के घर घर के यहाँ पर जाकर बेचने वाले लोगों को हॉकर कहते हैं. सो व्हेन every day when this boy goes to school by walking through the lane, he मिलता है किससे? a hawker. And every time this hawker used to cry, bangles, crystal bangles. कौन सा बेच रहा है वो? crystal bangles, यानी कांच के बैंगल्स बेच रहे हैं. Whenever he saw him, जब भी वो देखते हैं उनको, there is nothing to hurry him on. There is no road he must take, no place he must go to, no time when he must come home. देखो ये हॉकर का स्पेशलिटी, what all freedom he has. कौन से फ्रीडम है उसके पास. there is nothing to hurry him on. उनको कोई घाई गड़बड़ नहीं है कि जल्दी पहुंचना है, टाइम लिमिट है, ऐसा कुछ नहीं. he does not have to hurry. उन्हें घाई करने की ज़रूरत नहीं. there is no road he must take. there is no particular road that he has to go through. कोई स्पेशल रोड नहीं कि यही रास्ते से जाना है. he can take any road. no place he must go. ऐसा भी नहीं कि तुम यहाँ से घर से निकले हो, तुमको वही जगह में जाना है. he can go anywhere. nobody will stop him going anywhere. कहीं भी जाने से कोई रोक नहीं सकते. nobody will force him to go this way or that way. no time when he must come home. और the returning home time also is not fixed. He can return home at any time. कभी भी return आ भी सकते हैं. That means the boy is comparing this hawker with his condition, that he has to go to school taking the constant road. एक ही रास्ता पकड़कर स्कूल जाना है at the proper time, correct time पे भी जाना है. After leaving from school, he has to go back to home. He should not go anywhere else, and he has to reach home in the particular time, in a fixed time. Fixed time पे घर पे भी जाना है. किसको? बॉय को. But this hawker has a lot of freedom. I wish I were a hawker spending my day in the road crying bangles, crystal bangles. So after seeing, whenever he sees the hawker, he वो विश करता है या वो चाहता है, he wishes that he were a hawker. काश मैं भी एक हॉकर होता और चिल्लाते घूमता बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स. When at 4 in the afternoon I come back from the school. अब नेक्स्ट इंसिडेंट बता रहा है. when at 4 o'clock को, after leaving from school, स्कूल से छुटने के बाद, when he comes back to home, घर के तरफ वो रास्ते में आते होंगे वो टाइम पे. ओके, तब क्या होता देखो.
I can see through the gate that house the gardener digging the ground. एक घर, पर्टिकुलर एक घर के सामने एक गेट, उस गेट के अंदर, वो गेट के थ्रू, गेट के अंदर से वो देख सकते हैं अ गार्डनर, गार्डनर मीन्स गार्डन संभालने वाला, द पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ गार्डन इज अ गार्डनर, हिंदी में हम बोलते हैं माली। एक माली को देखते हैं, ऑलवेज ही यूज टू डिग द ग्राउंड, जब भी देखो वो मट्टी खोदते रहता है, जमीन खोदते रहता है, डिगिंग द ग्राउंड। ही डस व्हाट ही लाइक्स विथ स्पेड, स्पेड मीन्स फावड़ा, उसके स्पेड से वो, मतलब इट्स अ गार्डन इक्विपमेंट, अपने स्पेड से, अपने स्पेड से वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू डू ही कैन डू, वो जो चाहते हैं, यहाँ खोदो वहाँ खोदो, जो कुछ भी करना है ही कैन डू। दैट मीन्स दिस गार्डनर ऑल्सो हैज़ अ फ्रीडम। ही सोइल्स इज क्लॉथ विथ डस्ट, अपने कपड़ों को सोइल्स यानी गंदे कर देते हैं, डर्टी कर देते हैं विथ डस्ट, मिट्टी, धूल, धूल मिट्टी से अपने कपड़े भी गंदा करते हैं। नोबडी टेक्स हिम टू टास्क, कोई भी टेक्स हिम टू टास्क, टेक्स टू टास्क, व्हाट यू मीन बाय टेक्स टू टास्क, स्कोल्ड्स एंड करेक्ट्स, कोई भी उनको स्कोल्डिंग करने, करेक्टिंग करने, मतलब ये सही नहीं है, ऐसा कर वैसा कर, कोई बोलने के लिए नहीं आ रहा है। नोबडी टेक्स हिम टू टास्क। इफ ही गेट्स बेक्ड इन द सन और गेट्स वेट, कभी समझाने नहीं आता या कभी चिल्लाने नहीं आता। इफ ही गेट्स बेक्ड इन द सन, सन मतलब इन द सन मीन्स धूप में, धूप में बैठ के अपने आप को बेकिंग करके रह रहे हैं, यानी कि एकदम गर्म हो गया है, धूप में बैठकर स्किन सब जलने लगे, तो भी नोबडी विल कम एंड स्कोल्ड हिम, कोई भी आएगा नहीं और चिल्लाएगा नहीं। नोबडी विल टेक हिम टू टास्क, कोई उसको सुधारने भी नहीं जाता। और गेट्स वेट, अगर समझो बारिश में भीग भी रहने दो, वेट मीन्स भीगना, गिल्ला होना, तभी भी कोई आएगा नहीं उनके पास चिल्लाने। आई विश आई वर अ गार्डन डिगिंग अवे एट द गार्डन विथ नोबडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। आई विश, काश, मैं भी चाहता हूँ कि आई वर अ गार्डनर, मैं भी एक गार्डनर होता, देन आई कैन डिग वेर एवर आई वॉन्ट, dig the soil and I can spoil my, or I can soil my cloth with dust and dirt. Nobody will come to ask me or come to scold me. कितना अच्छा होता। Then the child is thinking, just as it gets dark in the evening, और रात हो गया, शाम हो गया, जैसे अंधेरा छाने लग जाता है, just as it gets dark मतलब जैसे अंधेरा होने लगता है in the evening, and my mother sends me to bed, and then my mother tells me go to bed and sleep। जब शाम हो जाते हैं, अंधेरा आने लग जाते हैं, तो मम्मी बोलती है जाकर सो जाओ, मम्मी सेंड्स मी टू बेड, मुझे बेड पे सोने के लिए भेज देती है। दैट टाइम आई कैन सी थ्रू माई open window the watchman walking up and down. I can see through my window, sorry, through my open window, I can see means मैं देख सकता हूँ, through किससे, through my open window, मेरे रूम के ओपन विंडो से, खुली खिड़की से मैं देख सकता हूँ द वॉचमैन, किसको, वॉचमैन को। व्हाट ही वॉज डूइंग, वॉकिंग अप एंड डाउन, ऊपर नीचे आगे पीछे जस्ट घूमते रहता है, चलते रहता है। द लेन इज डार्क एंड लोनली, रास्ता पूरा डार्क अंधेरा है, लोनली खाली है, कोई भी नहीं। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जायंट विथ वन रेड आई इन इट्स हेड। एंड द स्ट्रीट लैम्प, रास्ते का जो लैम्प मतलब बिजली, जो खंबे पे जो बत्ती है, जो लाइट है, वो लैम्प क्या करता है, स्टैंड्स लाइक मतलब खड़ा है जैसे, अ जायंट विथ वन रेड आई मतलब एक आंख वाले, एक लाल लाल आंख वाले जायंट की तरह। जायंट इज राक्षस, जायंट मीन्स राक्षस, जायंट विथ वन रेड आई, एक लाल आंख वाले जायंट की तरह, राक्षस की तरह। कौन खड़े हैं रास्ते पे, द लैम्प मीन्स लाइट, वो भी आंख किधर है, इन इट्स हेड, उसके सर पे। सो एक्चुअली दिस इज एन इमेजिनरी कैरेक्टर फ्रॉम द ग्रीक मिथोलॉजी। ग्रीक मिथोलॉजी मतलब ग्रीक मिथोलॉजिकल स्टोरी, मिथोलॉजिकल स्टोरी बोलेगा तो गॉड से रिलेटेड स्टोरी। वैसा एक स्टोरी है होमर्स ओडिसी, होमर्स ओडिसी, ओडिसी नाम का स्टोरी रिटन बाय होमर। तो इस स्टोरी में एक कैरेक्टर है जायंट विथ वन रेड आई इन इट्स हेड, सर के ऊपर एक बड़ा सा लाल वाला आंख वाले एक जायंट। ओके, सो द बॉय, when the boy looks at this light or lamp on the street, it looks like the giant with red eye, one red eye. The watchman swings his lantern and walks with his shadow at his side. ये वॉचमैन क्या करते हैं, स्विंग्स इस लैंटर्न, अपने लैंटर्न को यहाँ वहाँ झुलाते या हिलाते हाथ में रखकर। लैंटर्न नॉर्मली तो हम यहाँ पर वॉचमैन को देखते तो वॉचमैन टॉर्च लेकर घूमता है, ये लैंटर्न मतलब यहाँ पर टॉर्च होगा, लेकिन रियल लैंटर्न जो है वो एक
बत्ती है. I'll show you what is it is. I'll show the image of that. यहाँ पर जो इमेज दिख रहा है इसको लैंटर्न कहते हैं. तो वॉचमैन इस लैंटर्न को क्या कर रहा है, घुमा रहे हैं, यहाँ वहाँ हिला रहा है. स्विंगिंग मतलब झुला रहा है. झुलाते हुए क्या कर रहा है, एंड वॉक्स विथ इज शैडो एट इज साइड, यानी अपने शैडो के साथ साथ. शैडो क्या है, परछाई. अंधेरे में थोड़ा सा रोशनी मिलता है, उस रोशनी में परछाई आती है, बराबर है. वो शैडो के साथ साथ वो भी चल रहा है यहाँ वहाँ. The watchman swings his lantern and walks with his shadow at his side and never once goes to bed in his life. और in his whole life, वो पूरे अपने ज़िंदगी में he never goes to bed. कभी भी रात को सोने नहीं जाता. वाओ, कितने मज़े आते हैं, बराबर है. ये बच्चे को क्या कर रहा है, मम्मी शाम होते ही go to bed, बेड में भेज देते हैं. and he does not want to go to sleep. और वो सोना नहीं चाहते हैं. he wants to play, he wants to roam here and there. घूमना फिरना चलना चाहते हैं. And he was thinking that how free this watchman is. Nobody is telling him to go to bed. And he never goes to bed. वो कभी सोने जाता भी नहीं है. I wish I were a watchman walking the street all night, chasing the shadows with my lantern. I wish, काश मैं भी चाहता हूँ, I were a watchman, मैं भी एक वॉचमैन बन जाए. वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट, पूरे रात रास्ते से यहाँ वहाँ चलते रहूँ. चेसिंग द शैडोज, मेरे ही शैडो को चेस करते हुए, यानी उसका पीछा करते हुए. विथ माई लैंटर्न, हाथ में मेरे लैंटर्न भी लेते हुए. दीज आर द विशेस गिवन बाय द या एक्सप्रेस्ड बाय द बॉय इन द पोएम. ये पोएम का जो बच्चा है वो ये सभी विशेस कहते हैं. दैट मीन्स ही वॉन्ट्स टू बी free. He wants to have freedom. He does not want to go or do the things in proper time. He wants to be like a hawker who can go anywhere, who can roam and who can shout and who can come back home anytime. And again he wishes to become a gardener who can dig soil whenever he wants or wherever he wants, and soils his cloth with dust and dirt. And he wants to be baked in the sun and he wants to get wet in the rain. And at last he wishes that he should become a watchman who never sleeps at night and nobody will tell him to sleep in the night, and whole night he could walk here and there. So this poem is written by Rabindranath Tagore. I hope, my children, you understood the meaning of the poem and you must have enjoyed it. Now it's your turn to go through the workshop. Question answers given in the last end of the poem. Okay, bye bye.